Before we listen to God's word, shall we pray? اے ہمارے آسمانی باپ، ہمارے پروردگار، اور ایک بار آپ کے بیٹے اور ہمارے خداوند یشوع کے خون کے چھڑکاؤ کے نیچے آتے ہوئے آپ کی پاک حضور میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے خداوند ہیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آپ ہمارے لیے کافی ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے ہمارے خداوند، جیسے ہی ہم آپ کا کلام سننے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو پرکھ کر، جانچ کر، ان کو پاک و نیک بنا کر آپ کے بیٹے کے لیے مستعد رہنے کے لیے آپ کے اس میز کے قریب آتے ہیں، خداوند آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلام کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو آپ جانچیں پرکھیں اور ہمیں تیار کریں۔ خداوند مجھے بھی یاد کریں اور میرے خداوند اور منجی یشوع کے خون میں مجھے دھو کرنے کو پاک بنائیں، اور آپ کا کلام آپ کے تخت پر سے ہم پر نازل کریں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمارے خداوند یشوع کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزوں، ہم دیکھیں گے 1 Thessalonians chapter 5 and verse 5۔ پہلے تسلونیوں کا خط باب نمبر 5 اور آیت نمبر 5 کی 5۔ پہلے تسلونیوں کا خط باب نمبر 5 اور آیت نمبر 5۔ کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ عزیزوں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کے کلام میں خدا ہم سے یہ باتیں آج کہتا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور دن کے فرزند ہیں۔ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور دن کے فرزند۔ ہم نور کے فرزند کیسے بنے؟ ہم دن کے فرزند کیسے بنے؟ ہم ذرا دیکھیں گے۔ ہم اگر اعمال کی کتاب میں پڑھیں گے، بک آف ایکٹس چیپٹر 26 ورس 18، اعمال کی کتاب باب نمبر 26 اور آیت نمبر 18، اگر ہم یہاں پڑھیں گے تو یہاں پہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ پولس رسول اپنی تبدیلی کا بیان دیتا ہے، اور خداوند یشوع جب ان سے ملے تھے تو اس بات کا ذکر یہاں کرتے ہیں، اور خداوند یشوع نے پولس رسول سے جو بھی باتیں کی تھی ان کی تبدیلی کے وقت ان باتوں کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ خداوند یشوع نے پولس رسول سے کیا بات کہی تھی، کیا کیا باتیں کہی تھی جب انہیں اس دمسکس کے راہ میں ملے تھے۔ آیت نمبر 26 کا 18، کہ تو اپنی آنکھیں کھول دے تاکہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے ساتان کی طرف اور روشنی کے ساتان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو شاید ہم 17 سے پڑھیں گے، 17 اور 18۔ میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا۔ خداوند یشوع کہہ رہا ہے پولس رسول سے، میں تجھے اس امت مطلب یہودیوں سے اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں۔ ہاں، خداوند یشوع کہتے ہیں کہ میں تجھے غیر قوموں کے پاس اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دیں، تاکہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور ساتان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ یہاں خداوند یشوع 5 باتیں کہہ رہے ہیں غیر قوموں کے بارے میں، اور ان 5 باتوں کو ہم ایک بار دیکھیں گے۔ کیا ہے وہ 5 باتیں؟ پہلی بات، تاکہ تو ان کی آنکھیں کھول دے۔ ہماری آنکھیں بند تھیں اور وہ تھی ہماری پہلی حالت۔ دوسری بات، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور ساتان کے اختیار سے
खुदा की तरफ रुजू लाएं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अंधेरे से रोशनी की तरफ रुजू करना है, अंधेरे से उनको निकालना है, सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाना है, सातान से छुड़ाना है, और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफ़ी, हाँ, ईमान से गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, और मुक़द्दसों में शरीक होकर मीरास पाएं, मुक़द्दसों में शिराकत भी मिलती है। ये 5 बातें हमारी हालत बताती हैं कि हम कैसे थे इससे पहले, खुदावंद यीशुआ के पास आने से पहले कैसे थे हम अंधे थे और अंधेरे में थे और सातान के इख्तियार में थे और हम गुनाहों में थे और हम कैसे थे? मुकद्दस नहीं थे। ये थी 5 बातें जिनमें हमारी ज़िंदगी हम गुजारते रहे। लेकिन इस अंधेरे से, इस सातान की ताकत से या सातान के इख्तियार से खुदावंद यीशुआ ने हमें छुड़ाया, और उसने छुड़ाकर हमें क्या किया है? देखिए 1 पीटर 2:9, पहला पत्रस हमने ये बात इबादत के वक्त भी पढ़ी थी, पहला पत्रस 2:9। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। खुदा ने क्या किया? हमें तारीकी से, हम कहाँ थे? तारीकी में थे, हम तारीकी में थे, और खुदा ने क्या किया? हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। खुदा की अजीब रोशनी जो है, उस जलाल में, उस रोशनी में, उस नूर में खुदा ने हमें बुलाया। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो तारीकी में थे, अंधेरे में थे और सातान के इख्तियार में थे, उसकी कुदरत में, उसकी ताकत में हम पड़े रहे थे। लेकिन खुदा ने क्या किया? हमें छुड़ाया वहाँ से और हमें निकाल लाया, और क्या किया? हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अब हम कहाँ हैं? जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाता है वो कहाँ है? अब वो खुदा की अजीब रोशनी में बुलाया गया है। कहाँ है हम अब हम खुदा की अजीब रोशनी में हैं। और कलाम क्या और कहता है? एफिशियंस चैप्टर 5, एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8। एफिसियों की किताब 5:8, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। हम कहाँ थे? पहले हम तारीकी थे, वी वर डार्कनेस, लेकिन अब खुदावंद में नूर हो। खुदावंद में हम क्या हैं? हम अब खुदावंद में नूर हो चुके हैं। हम पढ़ते हैं ना, खुदावंद यीशुआ बाइबल में कहते हैं कि मैं इस दुनिया का नूर हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड जीसस सेज। खुदावंद यीशुआ ही इस दुनिया के नूर हैं। उन्होंने क्या किया? हमें अंधेरे से, तारीकी से निकाला और अपने अजीब रोशनी में, नूर में बुलाया, वहाँ शामिल किया और हमको नूर बना दिया, हमको मुनव्वर बना दिया और हमको सच में नूर भी बना दिया। क्या लिखा हुआ है? मगर अब खुदावंद में नूर हो। हम कौन हैं अब? हम नूर हैं। हम खुदावंद यीशुआ में नूर बन चुके हैं। नूर कहाँ है? नूर या रोशनी खुदा के पास है। अगर हम इस कायनात में, यूनिवर्स में देखेंगे, जैसे ही हम देखते देखते जाएंगे टेलीस्कोप लगा के, कहीं भी हमको नूर नज़र नहीं आता, कहीं भी हमको रोशनी नज़र नहीं आती सिवाय उन सितारों को छोड़ के। सितारों को जब हम देखेंगे तो सितारों में नूर है, वो नूर भी कुछ सालों के बाद वो भी फना हो जाएगा, सितारे फना हो जाएंगे। आसमान में कायम रहने वाला, हर वक्त हमेशा के लिए बरकरार रहने वाला नूर दुनिया में नहीं है, कायनात में कहीं भी नहीं है। हर एक सितारा वो
ہاں فنا ہو جائے گا، نیست ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا. لیکن حقیقی نور کہاں ہے؟ حقیقی نور اس خالق کے پاس ہے، اس منور خالق کے پاس ہے. منور نہیں کہہ سکتے، وہ خود نور ہے، وہ خود نور ہے. اس نورانی خالق کے پاس، جلال ور خالق کے پاس ہے وہ سچا نور. اور اس نور میں خداوند یشوع نے ہمیں لایا اور ہمیں نور بنا دیا. عزیزوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. دنیا میں لوگ پانا چاہتے ہیں نور، حقیقی نور پانا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں. اور خدا کی بادشاہت میں جو جلال خدا کا ہوتا ہے، جو نور خدا کا ہوتا ہے، اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ اپنی نیکوکاری سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنی تقدس سے یہ حاصل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ دیکھیے خداوند یشوع نے کہا تھا، مرکز کی خوشخبری، میتھیوز گاسپل چیپٹر 7، مارکس گاسپل چیپٹر 7، مرکز کی خوشخبری باب نمبر 7 اینڈ ورس 21. مارک 7:21. کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. یہ ناپاک کرنے والی بری باتیں کہاں ہیں؟ یہ سب کے سب انسان کے دل کے اندر ہے. تو ہر ایک انسان جانتا ہے، چاہے وہ خدا پرست ہو یا چاہے وہ خدا کو نہ ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. اور کتنی بھی نیکوکاری کریں، ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر یہ برائیاں جو ہیں، اس سے راحت نہیں ملتی، اس سے چھٹکارا نہیں ملتا، اس سے خلاصی نہیں ملتی. انسان کتنی بھی راست بازی کرے، نیکوکاری کرے، خدا پر زندگی جیے، پھر بھی جب وہ اپنے اندر جھانکے گا، گناہ دکھتے ہی رہے گا. تو انسان کس طریقے سے، کیسے اپنی نیکوکاری سے، اپنی خود غرضی سے، خود کی راست بازی قائم کرتے ہوئے اس گناہ سے چھٹکارا پائے گا؟ اگر اندر گناہ ہے، گناہ کے ساتھ خدا کی نورانی بادشاہت میں تو ہم شامل نہیں ہو پائیں گے. ہر ایک گناہ کو خدا نیست کرنے کے لیے دوزخ میں بھیجے گا. اگر آپ کے اندر گناہ ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں چلے جائیں گے. لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاکت میں جائے، نیست ہو جائے، قبر سے اٹھ کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائے. اگر انسان چاہے تو وہ خدا کے اس نور میں شامل ہو سکتا ہے. ایک ہی راستہ ہے وہاں پہنچنے کا. وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے یوحنا کی خوشخبری، جانس گاسپل چیپٹر 14، 14واں باب اور آیت نمبر 6. جان 14:6. یشوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. خداوند یشوع نے کیا کہا؟ راہ، وہاں تک، خدا تک رسائی دلانے والا راہ میں ہوں، خدا تک پہنچانے والا راہ میں ہوں. خدا کی موجودگی تک، خدا کی سلطنت تک تجھے پہنچانے والا راہ میں ہی ہوں. خدا کے اس نور میں شامل ہونے کے لیے تجھے وہاں تک پہنچانے والا راہ میں ہی ہوں. خداوند یشوع کو مصلوب و مقتول کیے، ان کو دفن کیے، پھر تیسرے دن خداوند یشوع مردوں میں سے اٹھ کر خدا کے پاس چلے گئے. اسی لیے جو کوئی خداوند یشوع کے پاس آ کر، یشوع مجھے آپ کے خون میں مجھے دھو کر مجھے نیک و پاک کیجیے کر کے مانگے گا، اس کے سارے گناہ ایمان کے ذریعے سے، اس کے ایمان کی وجہ سے معاف کیے جائیں گے.
اور وہ خداوند یشوع میں ایمان رکھتے ہوئے مرنے کے بعد خدا کے اس جلال میں، اس نور میں ضرور شامل ہوگا۔ عزیزو، اس طریقے سے خداوند یشوع نے ہمیں نور بنایا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ ایفیشینز چیپٹر 5 اینڈ ورس 8 کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ایفیسیوں کی کتاب 5 کی 8 میں ہم نے کیا پڑھا؟ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ ہم کون ہیں؟ ہم جو یشوعی مومن جو ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم نور ہیں، ہم تاریکی نہیں ہیں۔ باقی دنیا والے سب کے سب جانتے ہیں کہ وہ تاریکی میں ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اندر گناہ ہے، اور جس میں بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ سے ڈرتا ہے، جو بھی گناہ کا ماتحت ہے، گناہ کے قبضے میں ہے، گناہ سے متاثر ہے، وہ ضرور نیست ہوگا، وہ ضرور تاریکی میں ہے، وہ نور تک پہنچے گا نہیں۔ اسی لیے لوگ جانتے ہیں، اسی لیے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یشوعی مومن کو موت سے ڈر نہیں۔ صرف اور صرف یشوعی مومن کو ہی ڈر سے، موت سے ڈر نہیں، کیونکہ وہ لوگ نور تک جاننے کا راستہ پہچان چکے ہیں۔ ان کے پاس نور تک، ابدی نور تک، ہمیشہ کی اس جلالی نور تک، اس جلالی زندگی میں، نورانی زندگی میں داخل ہونے کا امید ہے، اور وہ راستہ وہ جانتے ہیں جو کوئی اور نہیں ہے، خداوند یشوع جو مصلوب و مقتول ہے۔ عزیزوں، خدا نے ہمیں کیا بنایا؟ نور بنایا۔ ہم کون ہیں؟ خدا کا نور جو ہے، خدا جو جلال ہے، اس میں جا کر شامل ہونے والے نورانی لوگ ہیں۔ ہم خود نور بن چکے ہیں خداوند یشوع پر ایمان لانے سے۔ عزیزوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسا خدا کا نور بننے کے بعد ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں جینا ہے، چند باتیں ہم پڑھیں گے، 7 باتیں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ختم کریں گے۔ چلیے 2 کرنتھیوں چیپٹر 5، دوسرے کرنتھیوں کے نام لکھا ہوا خط، باب نمبر 5 اور آیت نمبر 17۔ 2 کرنتھیوں 5:17، 2 کرنتھیوں 5:17، دوسرے کرنتھیوں کی کتاب باب نمبر 5 اور آیت نمبر 17، 5 کی 17۔ اس لیے اگر کوئی معاشیخ میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم معاشیخ میں ہیں، ہم تو خداوند یشوع میں ہیں، معاشیخ میں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ نیا مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ہاں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ عزیزوں، ہم کون ہیں؟ ہم جو یشوع میں موجود ہیں، ہم نیا مخلوق ہیں۔ عزیزوں، کس طرح کا مخلوق ہے ہم؟ کس طرح کی خلقت ہے ہماری؟ پرانی خلقت، پرانا مخلوق کون تھا؟ آدم تھا۔ اس میں انسان سب کے سب معلول ہو گئے کلام کے مطابق، اسی لیے ہر ایک انسان مرتا ہے۔ خدا نے آدم کو جب بنایا، یہوہ خدا نے جب آدم کو بنایا، ہم باقی خداؤں کے بارے میں بات نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کو مانتے تک نہیں، بلکہ ہم یہوہ خدا کو ہی مانتے ہیں جو بائبل کا خدا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جب یہوہ خدا نے آدم کو بنایا تھا، اسے نورانی بنایا تھا، جلالور بنایا تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی صورت و شبیہ میں بنایا تھا، اس واسطے وہ نورانی تھا۔ لیکن اس نے گناہ کیا، وہ اس کو خدا ابدی جلال اور ابدی حیات کے ساتھ پیدا کیا تھا، لیکن جب وہ گناہ کیا تو موت اس پر قبضہ کرنے لگی اور آدم مر گیا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام فرزند آج تک مرتے آئے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ اپنے اکلوتے بیٹے یشوع کو اس دنیا میں بھیجا، جو صلیب پر مصلوب و مقتول ہو کر ہمارا کفارہ بن کر اپنا خون بہایا، جس میں ایمان لانے سے یشوع کا خون ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی ہے۔ یشوع ہمارے متبادل ہیں، اور ہمیں بچانے والے نجات دہندہ ہیں، اور ہمارے گناہوں کی سزا یشوع نے بھگت لی اور ہمیں چھڑایا۔ اور ہمیں اب کیا کیا ہے؟ خدا نے یشوع میں ایک نیا مخلوق خدا نے ہمیں بنایا۔ کس طرح کا مخلوق ہے ہم؟
हम नूरानी मखलूक हैं, आसमानी नूर तक पहुंचने वाले नूरानी मखलूक हैं। अजीज़ों, हमें याद रखना है कि हम नूरानी मखलूक हैं। इस दुनिया की तारीकी से, इस दुनिया की अंधेरे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें खुदा ने नूरानी नया मखलूक बनाया है। अजीज़ों, याद रखेंगे, जब हम इस दुनिया में चलेंगे, चलते रहेंगे, चाल चलन करते रहेंगे, तो याद रखेंगे कि हम कौन है? नूरानी मखलूक हैं। दूसरी बात, रोमन्स चैप्टर 13, रोमियो की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 12। रोमन्स 13 एंड वर्स 12। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। हाँ, क्या लिखा हुआ है? रोशनी के हथियार बांध लें। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आर्मर ऑफ लाइट, पुट ऑन दी आर्मर ऑफ लाइट। व्हाट इज एन आर्मर? आर्मर क्या है? हाँ, उन पुराने ज़माने में लोग जब जंग करने के लिए जाते थे तो आर्मर पहनते थे, ताकि सातान या मतलब मुखालिफ या दुश्मन जो भी तीर चलाएगा अंदर पहुंचकर जख्मी ना करें। इसीलिए वो आर्मर पहनते थे। खुदा का कलाम कहता है कि हमें खुदा ने क्या दिया था? खुदा ने हमें रोशनी का आर्मर, रोशनी के हथियार बांधने करके लिखा हुआ है, लेकिन रोशनी का आर्मर खुदा ने हमें दिया है। हम इस दुनिया में जब चलेंगे, फिरेंगे, चलते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो याद रखना है कि हमेशा हमें नूर के हथियार ही अपने ऊपर, रोशनी या नूर के हथियार ही बांध लेने हैं। रोशनी का वो आर्मर जो है हमें बांध लेना है। हम तारीकी से हमेशा लड़ते रहेंगे। तारीकी खामोश नहीं रहेगी। तारीकी से खुदा ने हमें छुड़ाया, लेकिन वो तारीकी, वो अंधेरा, वो खामोश नहीं रहेगा। हम पर वार करेगा, हम पर अटैक करेगा, हमको तड़पाना चाहता है, फिर वापस हमें उसकी गुलामी में ले जाना चाहता है। नूर तक हमारी रसाई नहीं होना चाहता है। नूर में पहुंचने से पहले हमें रोकना चाहता है, रोक के उसकी गिरफ्त में ले जाकर फिर से बंदिश में डाल के अंधेरे के गुलामी में वो रखना चाहता है, अपने कब्जे में रखना चाहता है अंधेरा या तारीकी। इसलिए हमें क्या करना है? रोशनी के हथियार बांध लेने चाहिए। मतलब हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुनिया की चीज़ें, अंधेरे की चीज़ें और तारीकी की चीज़ें हमारे अंदर नहीं रखनी हैं। अगर हम तारीकी के चीज़ें निकाल देंगे, तारीकी से कुछ भी मेल मिलाप अगर नहीं रखेंगे, तारीकी से अगर हम कुछ भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तो वो हम पर वार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हमेशा अपने ऊपर रोशनी के हथियार बांध लेने हैं। तारीकी हमारे अंदर बिल्कुल एक भी तारीकी का हथियार, तारीकी की चीज़ हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे ही हम इस दुनिया में चलते हैं, याद रखेंगे, वी हैव टू वेयर द आर्मर ऑफ लाइट। तारीकी नहीं बल्कि रोशनी के हथियार या आर्मर बांध लेना चाहिए। हम 7 बातें देखेंगे, 2 हमने देख ली। तीसरी बात, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 7, पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। क्या लिखा हुआ है? लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? जिस तरह खुदावंद यीशुआ नूर में पहुंच गए, उसी तरीके से अगर हम
अगर हम नूर में चलें, इस दुनिया में अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ वहां पहुंच गए, नूर में पहुंच गए। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? हमें नूर में चलना है। जिस तरह के, वो लफ्ज देखिए, वो अल्फाज देखिए, जिस तरह के, मतलब हमें खुदावंद यीशुआ का इमिटेशन करना है, नकल करना है। जैसे वो नूर में है, हम भी हमेशा नूर में रहें और एहतियात से रहें कि इस दुनिया की ज़िंदगी में, इस दुनियावी ज़िंदगी में तारीकी हमारे अंदर ना आ जाए, तारीकी हमारे पास ना आ जाए, अंधेरा हमारे पास, हमारे करीब ना आ जाए। कभी कभी अंधेरा हमारे पास आता है और मीठी मीठी बातें बोलता है, हम बहुत इश्कंगेज बातों से वो पेश आता है, लेकिन तारीकी को पहचानना हमारा फर्ज बनता है, अंधेरे को पहचानना हमारा फर्ज बनता है। नहीं तो अंधेरा या तारीकी हमारे अंदर घुस जाने की गुंजाइश है। इसीलिए क्या करना है? जैसे वो है वैसे इस दुनिया में हमें रहना है। जैसे वो नूर में है, हमें भी उसकी तरह, माशियख की तरह इस दुनिया में हमें भी नूर में हमेशा चलना है। अपनी राहों को देखते चलना है कि क्या हम उसकी तरह नूर में हैं? आर वी इमिटेटिंग हिम? आर वी फॉलोइंग हिम इन दिस वर्ल्ड? आर वी फॉलोइंग द वे ऑफ लाइट? हाउ आर वी? वी हैव टू एग्जामिन आवरसेल्व्स। अजीज़ों, हमारे सामने खुदावंद की मेज़ है और इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हम जांच लेंगे, क्या मैं खुदावंद जो नूर में है, क्या मैं उसकी तरह मैं जी रहा हूँ या नहीं, हम परख लेंगे। अगर हम उसकी तरह नहीं हैं, अगर हमें कुछ कमी है, नुक्स है, खोट है, बुराई है, गुनाह है, खता है, तो हम उस गुनाह को, नुक्स को हम भर लेंगे, निकाल देंगे और मुकम्मल होकर खुदावंद यीशुआ के पाक खून में धो करने को पाक बनकर, गुनाह को छोड़कर, तारीकी को छोड़कर, अंधेरे को छोड़कर खुदावंद यीशुआ की तरह नूर में चलते हुए इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। हमने 3 बातें देखी। चौथी बात, फोर्थ थिंग, आइज़िया चैप्टर 60 एंड वर्स 1। एशिया की किताब आइज़िया चैप्टर 60 बाब नंबर 60, एशिया की किताब बाब नंबर 60 और आयत नंबर 1। 60 की 1, एशिया की किताब 60 की 1। उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है और यहोवा का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्या लिखा हुआ है? उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया। क्या लिखा हुआ है? खुदा क्या कहता है? खुदा ने हमें नूर में लाया है, हमें नूर बनाया है और अपने आसमानी बादशाहत में जो नूरानी है उसमें शामिल होने के लिए मद्दू किया है। इस वास्ते हमें भी नूर बना चुका है। और खुदा क्या कहता है? उठ, मुनव्वर हो, मतलब नूर में कायम रहो, क्योंकि तेरा नूर आ गया। ये किसका नूर है? खुदा कहता है ये नूर जो है, जो मैंने तुझे भी दिया है, वो नूर किसका है? मेरा है। मेरा नूर, मेरा जलाल मैं तुझे दिया, तुझे मुनव्वर किया, तुझे नूर बनाया। लेकिन अब खुदा क्या कहता है? क्योंकि तेरा नूर आ गया है, खुदा कहता है कि ये नूर जो है, ये नूर जो मैंने तुझे दिया है, ये तेरा बन गया है, ये तेरा नूर है। ये खुदा का नूर जो हमें मिला है, इलाही नूर जो हमें मिला है, ये नूर खुदा कहता है ये हमारा खुद का बन गया है। ये खुदा से दिया गया नूर है, लेकिन उसको अपनाना है। हमें सीखना है कि हम नूर को अपनाएं, क्योंकि ये नूर, खुदा कहता है कि ये नूर हमारा बन गया है। तेरा नूर, खुदा कहता है। खुदा तुझे नूर देता है, मुझे नूर देता है, हमें नूरानी बनाता है, नूरानी नया मखलूक बनाता है और कहता है ये नूर तेरा है। अभी से इस नूर को कायम रखो, इस नूर को बुझाओ मत,
इस नूर को बुझाओ मत। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुदा से नूर पाते हैं, मुनव्वर होते हैं, लेकिन उस नूर को जिसे खुदा ने उसे दिया है, अपना लो करके दिया है, उस नूर को बुझा देते हैं। फिर उनकी ज़िंदगियों में तारीकी में चले जाते हैं। अजीज़ों, हम कैसे हैं? क्या इस नूर को जिसे खुदा ने दिया है, इस ईमान की ज़िंदगी को जिसे खुदा ने दिया है, क्या हम इसमें कायम हैं, बरकरार हैं, या इस ईमान की ज़िंदगी को जो यीशु में जो नूरानी ज़िंदगी और नया मखलूक बनने की ये ज़िंदगी जो खुदा ने हमें दी है, क्या हम इसे बुझा दे रहे हैं? याद करेंगे अजीज़ों, किसी भी कीमत पर खुदावंद यीशुआ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी कीमत पर अगर हम खुदावंद यीशुआ को छोड़ेंगे तो उस नूर को हम खो देंगे। जिस नूर को खुदा ने तेरा नूर ये करके हमारे सुपुर्द किया है, इस नूर को हम खो बैठेंगे। अजीज़ों, हम दुनिया में चले जाएंगे, दुनिया के साथ हलाक हो जाएंगे, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। इसीलिए आज शाम को खुदा हमसे कहता है, ये नूर तुझे मैंने दिया है, ये तेरा नूर है, इसे संभाल कर रखो, इसे बरकरार रखो, एहतियात से इसे अपने पास कायम रखो, उसमें कायम रहो। अजीज़ों, हम कैसे हैं ज़रा जांच लेंगे। आगे बढ़ेंगे। 5वीं बात हम पढ़ेंगे। हम 7 बातें देखेंगे। 5वीं बात, पहले तिमोथी की किताब, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4, पहला तिमोथियुस की किताब चैप्टर 4 एंड वर्स 12, 4 की 12। कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। हाँ, खुदा क्या कहता है? इस दुनिया में नूर पाने के बाद, नूरानी नया मखलूक होने के बाद तुझे कैसे रहना चाहिए? नमूना बनकर रहना चाहिए। लोगों के सामने, दुनिया के लोगों के सामने जिनके पास नूर नहीं है, जो मुनव्वर नहीं है, तारीकी में पड़े हुए हैं, उनके सामने खुदा का नमूना बन, रास्तबाजी का नमूना बन। खुदा की रास्तबाजी जो मुफ्त में ईमान से यीशुआ के सलीबी खून में ईमान लाने से मिलती है, उस रास्तबाजी का नमूना बन और खुदावंद के एक्लीसिया के सामने, गॉड्स चर्च के सामने भी तू नमूना बन। अजीज़ों, हम कैसे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी देखकर लोग कहते हैं क्या कि ये शख्स जो है, ये इंसान जो है, ये आदमी जो है, ये औरत जो है, ये हस्ती जो है, मेरे लिए एक नमूना है? खुदा कहता है, बेटा नमूना बन, बेटी नमूना बन। लेकिन हाँ, गफल शायरी करते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ते हैं, नमूना नहीं बनते हैं। बहुत सारे नॉमिनल नामवार यीशुई लोग नमूना नहीं बनते, नमूना बनना नहीं चाहते। उनको तो दुनिया चाहिए ना, दुनिया का लुत्फ उठाना है, दुनिया में जाकर उसमें शामिल होना है, दुनिया की रविश के मुताबिक उसके पीछे दौड़ना है। दुनिया की ख्वाहिशात को कौन छोड़ना चाहेगा? कौन नमूना बनना चाहेगा? खुदा ढूंढ रहा है दुनिया में, ज़मीन पर खुदा अपनी नज़र डाल के ढूंढ रहा है कि मेरे लिए कायम रहने वाला कौन है, कौन है मेरे लिए नमूना बनकर खड़ा रहेगा। अजीज़ों, उन लोगों को अपने नूरानी जगह में, अपनी नूरानी बादशाहत में शामिल करने के लिए खुदावंद यीशुआ आ रहे हैं। बाइबल पकड़कर चर्च को दौड़ने वालों को ले जाने के लिए नहीं, उसकी बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को उस नूर में कायम रखने वालों को, जो नूर खुदा ने दिया है, उस नूर में बने रहने वालों को, उस नूर में बने रहकर खुदा के नमूने, खुदा के वास्ते इस दुनिया में नमूने बनकर
मोमिनों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने खुदा के लिए नमूने बनकर जीने वालों को लेने के लिए खुदावंद यीशुआ आ रहे हैं। तो आज अपनी ज़िंदगियों को देखेंगे, क्या हम उस कद्र खुदा के लोग जो हम हैं, क्या हम इस कद्र पाक हैं, नूर में हैं? क्या हम इस कद्र नमूना बन चुके हैं लोगों के सामने, खास करके खुदा की एक्लीसिया चर्च के सामने? हम परखेंगे, जांच लेंगे। सिक्स्थ थिंग, छठी बात, कोलोसियंस चैप्टर 3, कोलोसियों की किताब बाब नंबर 3, कोलोसियंस चैप्टर 3 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। हाँ, खुदा क्या कहता है? हाँ, तुम्हें क्या करना है? हाँ, यहाँ जो भी बुरी चीज़ें लिखी गई हैं उनको छोड़ देना है, उनको बिल्कुल छोड़ देना है। और हाँ, उनको तर्क करके, उनको छोड़ के खुदा के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ना है। हाँ, इस वास्ते एक बहुत संगीन लफ्ज़, बहुत सख्त लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है। क्या है वो सख्त लफ्ज़? कोलोसियों की किताब 3 की 5, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो, मतलब मार डालो, मुर्दा करो, मार डालो, है ना? हाँ, किसी को मुर्दा करने वाले को क्या कहते हैं? किसी को मुर्दा करने वाले को या मार देने वाले को क्या कहते हैं? कातिल कहते हैं, है ना? किसी को मार देने वाले या मुर्दा करने वाले को कातिल कहते हैं, क्योंकि वो कत्ल कर रहा है। यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है? तू कातिल बन। किस बात का कातिल? इंसानों को मारने का कातिल नहीं, क्योंकि इंसानों को मारने वाला कातिल कभी भी खुदा की उस नूरानी बादशाहत में बिल्कुल नहीं पहुंचता। बिल्कुल सख्त मना है। इंसान का कत्ल जो भी करेगा वो उस आसमानी बादशाहत में बिल्कुल पहुंचेगा नहीं। और याद रखना, खुदा ने लोगों से ये भी कभी नहीं कहा, यहोवा खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसने ये कभी नहीं कहा कि तू मेरे नाम पे लोगों को मार, लोगों की जान ले, कत्लेआम कर मेरे नाम में। ना, ये खुदा से आया हुआ हुक्म, यहोवा खुदा का हुक्म बिल्कुल नहीं। और खुदा ने कलाम में कहा कि जो भी कत्ल करेगा वो मेरी सल्तनत से खारिज किया जाएगा। खुदा के पास वो बिल्कुल पहुंचेगा नहीं। लेकिन यहाँ खुदा क्या कहता है? तू कातिल बन। किन को मारना है? किस तरह का कातिल बनना है? किन को मारना है? जमीन पर हमारे बदन में जो गुनाह है उसको मारना है, इंसान को नहीं, गुनाह को मारना है। कातिल कैसा आएगा? कातिल बड़ी जोश में आएगा, जोशीला बनकर आएगा, खस करके मार के चले जाएगा। हमें भी जोशीले बनकर गुनाह को मारना है, इंसानों को नहीं। गुनाह पर बेरहमी से पेश आना है, बेरहमी से गुनाह को मारना है। इसीलिए लिखा हुआ है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो या उनका कत्ल करो जो ज़मीन पर हैं। यानी कह रहा है किन को मारना है, किन का कत्ल करना है? यहाँ कह रहा है हरामकारी को कत्ल करो और नापाकी को मार दो और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को तू मार दे।
अजीज़ों, क्या हम इनको मार रहे हैं? हम तो कहते हैं कि हम नूर के फर्जंद हैं, खुदा के फर्जंद हैं। क्या हम गुनाह को मार रहे हैं, गुनाह के कत्ल कर रहे हैं या नहीं, जांच लेंगे। अगर हम गुनाह को नहीं मार रहे हैं, किसी तरह की भी खता पर हमें थोड़ा सा प्यार है, किसी तरह का गुनाह से हमें थोड़ा सा प्यार है, तो हम खुदा के उस नूर में पहुंचेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 9, आखिर में एक बात हम देखेंगे और इसका ख़त्म करेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 9, एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 9। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। नूर का फल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नूर का फल है, वो क्या है? हर तरह की नेकी, हर तरह की रास्तबाजी, हर तरह की सच्चाई। क्या हमारे अंदर ये नूर का फल है जो हर तरह की नेकी? क्या हम लोगों से नेकी से पेश आ रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं या नहीं? लोगों के साथ नेकी से पेश आ रहे हैं या नहीं, देख लेंगे। और हर तरह की रास्तबाजी, क्या हम लोगों के सामने रास्त हैं, रास्तबाजी के साथ हम पेश आ रहे हैं? और सच्चाई, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हर बात को हम परखते हैं, हर चीज़ को हम परखते हैं और सच्चाई को हम पकड़ते हैं। क्या आप सच्चाई को पकड़े हैं या डर के मारे सच्चाई को छोड़ चुके हैं? परखिए, जांचिए, सच्चाई में कायम रहिए। ये होता है नूर का फल। खुदा चाहता है कि ये नूर का फल हमारे अंदर जाहिर हो। हाँ, वो फल क्या है? हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई। अजीज़ों, अब मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन हमारे सामने हमारे खुदावंद की मेज़ है और इस मेज़ में हाथ डालने के लिए खुदावंद हमें बुला रहे हैं। क्या हमारे अंदर इस तरह की ज़िंदगी है या नहीं है? हम कहाँ से शुरू किए थे? हमने 1 थेसलोनियंस 5:5 से शुरू किया था। एक बार वो पढ़ेंगे, 1 थेसलोनियंस 5:5, पहले थेसलोनियन की किताब 5:5, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। क्या तारीकी की किसी भी बात, कोई भी बात आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है तो आपको उसे निकालना है, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हैं। और ये मेज़ जो है ये नूर के फर्जंदों के लिए है, दिन के फर्जंदों के लिए है, ना रात के फर्जंदों के लिए। रात के फर्जंद दुनिया में हैं, अंधेरे में हैं, हलाक होने वाले हैं। और तारीकी के फर्जंदों के लिए ये मेज़ नहीं है। तारीकी के फर्जंद तारीकी के हर बुरा काम करते रहेंगे, खुदा की सच्चाई को निकाल देते हैं, इनकार करते हैं, उसके बारे में बुरा बात करते हैं। अजीज़ों, हम नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हैं। अगर हमारे अंदर कुछ खोट है, नुक्स है, गुनाह है, ख़ता है जो हमने कलाम में पढ़ा है, अगर हम कलाम के मुताबिक नहीं जी रहे हैं तो हम खुदावंद के सामने घुटने टेकेंगे। अपनी ज़िंदगियों में जो नुक्स है, गुनाह है, उसे हम कबूल करेंगे और यीशु के खून में अपने आप को धो करने को पाक करेंगे और फिर से खुदावंद के लिए मुनव्वर हो जाएंगे। और खुदा ने जो नूर हमें दिया है, ये तेरा नूर करके जो नूर खुदा ने हमें दिया है, उसमें हम कायम रहेंगे, उसको हम हमारी ज़िंदगी में बरकरार रखेंगे और नूरानी फर्जंदों की तरह इस दुनिया में चलते हुए खुदावंद यीशु का नकल करते हुए जब वो आएंगे, उसके साथ हम उस नूरानी बादशाहत में चले जाएंगे। अब हम घुटने टेकेंगे और अपनी ज़िंदगियों को जांचेंगे और परखेंगे।